Good morning, students, and Assalamu alaikum. How are you all? Hope you will be safe and sound and under the blessing of Allah. As you know, we have started online classes from 23rd April through Zoom. For that, you must have a data package or Wi-Fi to be online. And for your kind information, I would like to say that the books are not available in the market, but to avoid the wastage of time, you have to compromise on online classes through Zoom. And your attendance will be also taken daily. Now students, let's start the first unit, that is unit number 1. Its name is My First Day in Class 3, My Speech. In this unit, we will be able to learn all things through pics and titles. We will also be able to learn two constant clusters that are SH and ST. We will also express the greetings. We will also recite a poem. We will learn how to arrange the alphabetical order. We will also discuss common noun and proper nouns, that are the types of nouns. The words, opposites, the punctuations, and the capitalization will also be practiced. And at the end, a mind map will be made to summarize the classroom. Now, students, let's start the first paragraph. This is all about my classroom, and the rules are also discussed in this unit. So the very first unit is My First Day in Class 3, My Speech. Speech mean तकरीर या बयान, जिसमें आप कुछ अपने बारे में बयान करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में बयान करते हैं. My speech, मेरा बयान. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. The very first paragraph is about myself. We will discuss about myself, in which class I read, and what's my name. So the very first paragraph is about myself. The second paragraph will be about the teachers and its classrooms, their classrooms and their teaching. How can we learn? How can we learn new things? And the third paragraph is about the cleaning and about the classroom, how we will take care of these rules. So the third paragraph is about the rules to clean the classroom. The first paragraph is, let's start reading. Hello everyone. Hello everyone means सबको salam. As a Muslim, हम assalamu alaikum बोलते हैं. And hello everyone means सबको salam. Today is my first day in class 3. आज मेरा क्लास 3 में तीसरी जुमात में आज मेरा पहला दिन है. I'm very happy. मैं बहुत खुश हूँ. All my friends are also very happy. और मेरे तमाम दोस्त भी बहुत खुश हैं. My name is Desh. Here you can write the name in this blank. What's your name? For example, Ali. Here I have written my own name, that is Miss Humaira. So you can write your own name. My name is Desh. I like to speak with my friends in English. मैं इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ बोलना पसंद करता हूँ. My teachers help me to learn through games and activities. मेरी उस्तानियाँ मुझे खेलो, games mean खेल, activities mean सरगर्मियाँ. मेरी उस्तानियाँ मुझे सरगर्मियों और खेलों के जरिए सीखने में मदद करती हैं. Learn mean सीखना, help mean मदद करना, games mean खेल, और activities mean सरगर्मियाँ. I know some poems. मैं कुछ poems mean नज़में. मैं कुछ नज़में भी जानता हूँ. And I love to sing these with my friends. और मैं ये, अब इन नज़मों की बात हो रही है. I love to sing. और मैं गाना पसंद करता हूँ these with my friends, अपने दोस्तों के साथ. यानी मैं अपने दोस्तों के साथ इन poems को गाना पसंद करता हूँ. Because they have rhyming words. So इसमें जितने भी आप rhyming words बोलेंगे तो वो उसी सीक्वेंस से आप अपनी सिंगिंग करेंगे. That is, this paragraph is about myself. ये अपने बारे में हमने बता दिया कि मैं किस क्लास में हूँ, थर्ड क्लास में हूँ, मेरा नेम ये है, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ. इसी तरह मेरी टीचर्स मुझे एक्टिविटीज के जरिए अपनी
सारे गेम्स और एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग करवाती है। ठीक है, लास्ट में पोइम्स के बारे में है कि पोइम्स मैं पसंद करता हूँ और उसकी सिंगिंग भी करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ you can say this is about the education, what is the purpose of education, or what is how can we learn through fun. So the second paragraph is about the education. This is the second rule for classroom. So the first sentence is that I come to school every day to learn new things. अब एजुकेशन के बारे में है कि मैं क्यों आता हूँ स्कूल के लिए। आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ एवरी डे, हर रोज। मैं हर रोज स्कूल आता हूँ टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने के लिए। दिस इज द मेन पॉइंट कि हम स्कूल क्यों आते हैं। हम स्कूल इसलिए आते हैं ताकि नई चीजें सीख सकें। इट्स फन टू लर्न एंड प्ले इन द स्कूल। ये सीखने में और खेलने में बहुत मजा आता है। फन मीन मजा आना, एंजॉयमेंट। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ऑफ फन इज एंजॉयमेंट। लर्न मीन सीखना, एंड प्ले इन स्कूल यानी स्कूल में आप लर्निंग भी करते हैं और प्ले अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती भी हैं, तो ये बहुत मजा आता है। देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम। मेरे क्लासरूम में लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, क्लासरूम मीन कमरे जुमात, जो आपका क्लास है उसमें कितने कौन कौन है आपके, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। वी लिसन टू आवर टीचर्स। दिस इज आल्सो द मेन पॉइंट, वी लिसन टू आवर टीचर्स। हम अपनी उस्तानियों की सुनते हैं, यानी आप अपने उस्तानियों की, अपनी टीचर्स की जो जो चीजें केयरफुली सुनेंगे, जो लेक्चर आपको दिया जाता है, अगर आप उसे गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आपके रिजल्ट के लिए, आपके टेस्ट के लिए, ये सारी बातें, न्यू चीजें, न्यू थिंग्स आप लर्निंग के लिए, ये सब चीजें आपके लिए बहुत कारआमद होगी। वी लिसन टू अवर टीचर, लेकिन जब आप अपनी टीचर्स की सुनेंगे। देयर आर फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम। अब नेक्स्ट जितना भी हमारा वो पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसमें रूल्स के बारे में बताया जाएगा। देयर आर फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम। क्लासरूम की कुछ, सॉरी, फ्यू मीन चंद, क्लासरूम के चंद उसूल हैं। फ्यू मीन चंद, रूल्स मीन उसूल। माई टीचर हैज मेड अ पोस्टर फॉर अस टू फॉलो द रूल्स। मेरी उस्तानी ने हमें इन उसूलों पर अमल करने के लिए, फॉलो मीन अमल करना, पैरवी करना, रूल्स मीन उसूल, पोस्टर मीन दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ट और अ बैनर जिस पर एडवर्टाइजिंग की जाती है किसी भी चीज को शो करने के लिए, विद पिक्चर, जिस पे राइटिंग भी होती है, पिक्चर भी होती है, उसको हम पोस्टर कहते हैं। और क्लास में जितने भी पोस्टर्स लगे होते हैं वो चार्ट से बने होते हैं, तो उसमें मैप्स भी होते हैं, उसमें आपके लिए पिक्चर वाइज क्लासरूम रूल्स भी होते हैं। माई टीचर हैज मेड अ पोस्टर फॉर अस टू फॉलो द रूल्स। मेरी टीचर ने मेरी टीचर ने कुछ रूल्स बनाए हैं, टू फॉलो, उन पर अमल करने के लिए क्या बना है, एक पोस्टर बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं क्लास रूल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज लिसन। वही बात आपकी इधर आ गई कि लिसन किसकी आपने लिसनिंग करनी है, द टीचर्स, कि आपने अपनी टीचर्स की लिसनिंग करनी है। हैव अ फन। फन मीन मजा आना, किस चीज में आपको मजा आता है। टू लर्न एंड प्ले यानी लर्निंग में और खेलों में आपको मजा आता है। बी पोलाइट, दिस इज आल्सो क्लासरूम रूल। बी पोलाइट मीन नरमी से आप बात ही करेंगे। बी पोलाइट मीन आप नरमी से रहें, नरम बोले, आपका लहजा नरम होना चाहिए। स्पीक पोलाइटली मीन कि आप नाइसली बोले। दिस इज आल्सो अ क्लासरूम रूल। ठीक है, कि आप वेल एजुकेटेड पर्सन शो होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बी पोलाइट, कि आपने पोलाइट रहना होगा। बी अ फ्रेंड, आपने अपने क्लास में आपके बहुत से फ्रेंड्स भी होते हैं, तो आपने फ्रेंडली रवैया इख्तियार करना होगा। सो दिस इज आल्सो अ रूल फॉर क्लासरूम, that be a friend. And the last one is work hard. Work hard mean कि आप सख्त मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनना है, तो उसके लिए आपने अपनी टीचर की सुननी होगी और आपने हार्ड वर्किंग करनी होगी। The next one is
वी शुड बी रेगुलर एंड पंक्चुअल टू स्कूल, ये भी क्लासरूम रूल है कि हमें स्कूल के लिए आपने बहुत ज्यादा वक्त का पाबंद रहना होगा, ठीक है, कि पंक्चुअल रहना होगा, टाइम पे स्कूल आना होगा, इस तरह आपने टाइम का ख्याल रखना होगा, आपने स्कूल के काम भी टाइम पे करने होंगे, सो यू हैव टू बी पंक्चुअल। द नेक्स्ट वन इज वी शुड गेट एजुकेशन एंड शेयर आवर नॉलेज विद अदर्स, ये भी क्लासरूम रूल है कि आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये आप दूसरों के साथ अपने नॉलेज को फैलाते जाएं, आप उनके साथ शेयर करते जाएं। ये डिस्कशन या जो नॉलेज आपको न्यू थिंग्स मिलती हैं क्लास में सीखने के लिए, आप वही डिस्कशन, वही चीजें अपने घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वो शेयर करते जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ। The next one is we should always be ready to serve and help each other, यानी हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खिदमत करें। इसका मतलब ये है कि आपने ये भी रूल आपने इस पे अमल करना होगा कि एक दूसरे के साथ आप हेल्पफुल रहें, ठीक है, कोऑपरेशन किया कर एक दूसरे के साथ, शेयरिंग किया कर, एक दूसरे की मदद कर दिया करें। दिस इज आल्सो द मेन पॉइंट कि आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो एज ए एजुकेटेड पर्सन आपने इन बातों का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है, कि आप हेल्प करेंगे एक दूसरे की हर चीज में जितना आपसे हो सके। So the third paragraph, now we will read the third paragraph. This is the last paragraph of this page. That is about classroom. How can we clean the classroom? How we can take care of the classroom? कि आप classroom का ख्याल कैसे रखेंगे? A very important rule is to keep our classroom clean. इसमें से important rule जो है, इन रूल्स में से क्लासरूम रूल का क्या है कि आपने अपने क्लासरूम को, अपने कमरे जमात को बिल्कुल क्लीन, साफ रखना पड़ेगा, आपने साफ रखना होगा। अब क्यों आपने साफ रखना होगा? द थिंग्स वी नीड आर, अब इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? नीड मीन जरूरत। द थिंग्स वी नीड आर, वो चीजें जिनकी हमें जरूरत होती है, क्या होती है? अब ये लिस्ट आ रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। ब्रश, एक ब्रश आपके साथ अगर ब्रश होगा उससे ये क्लीन आप क्लासरूम को साफ रखा जाता है। अ मॉप, मॉप मीन अ क्लीनिंग इम्प्लीमेंट और अ क्लीनिंग टूल, फॉर दैट वी कैन क्लीन द फ्लोर, जिसके जरिए फ्लोर भी आप साफ कर सकते हैं, जिसको उर्दू में झाड़न बोलते हैं या झाड़ू भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका एक हैंडल होता है और उससे आप फ्लोर की सफाई कर सकते हैं। वाटर बकेट, यानी वो बाल्टी जिसमें पानी डाला जाता है और उसके ज़रिए फिर वो चीज़ों को साफ़ करने के लिए उसमें कपड़ा वग़ैरह डाल के और जो फ्लोर है उसको साफ़ किया जाता है, तो वो वाली बकेट, उसमें से पानी होता है, पानी वाली बाल्टी। अ डस्टर, डस्टर मीन झाड़न, इट मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग इज़ अ स्पॉन्ज, जिसके ज़रिए आप बोर्ड की सफाई भी करते हैं, तो उसको हम डस्टर बोलते हैं। और यहाँ डस्टर वो दूसरा डस्टर भी हो सकता है जिसके ज़रिए वो जाड़ल होते हैं, जिससे जो चेयर्स वगैरह है उसको साफ किया जाता है, ठीक है? उससे गर्द-ओ-ग़बार वगैरह वो हटाया जाता है। तो दोनों उसकी डस्टिंग जो की जाती है तो दोनों डस्टर में आते हैं। लिक्विड सोप मीन, लिक्विड सोप का मतलब है कि जो माया सोप होता है, साबुन होता है। अब सोप की भी 2 काइंड्स है, एक लिक्विड सोप है और एक सॉलिड सोप है। सॉलिड सोप पैकेट्स में मिलता है और ये लिक्विड सोप अक्सर आपने देखा होता है कि वो शैम्पू टाइप होता है, प्रेसिंग पाउडर के ज़रिए वो निकाला जाता है और आप हैंड्स वॉश करते हैं, जो टॉयलेट में रखे जाते हैं। एंड अ साइन बोर्ड टू शो इफ द फ्लोर इज वेट, और एक साइन बोर्ड होता है जिस पर ये शो किया जाता है, जो जिस पर ये दिखाया जाता है कि जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो क्या है? वेट मीन गीला, ठीक है। अक्सर आपने देखा होता है कि जब बारिश होती है तो या वैसे ही फर्श वगैरह गीले पड़ जाते हैं तो अक्सर हम एक छोटा सा साइन बोर्ड भी लगा लेते हैं कि फर्श गीला है तो एहतियात रखिए, यानी फिसल ना जाए। इसी तरह क्लासरूम्स वगैरह में भी जब फर्श वगैरह को धोया जाता है तो वो इसी तरह गीले होते हैं। तो साइन बोर्ड टू शो द फ्लोर इज वेट, वेट मीन गीला। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। अब ये हैबिट, हैबिट मीन आदत, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ऑफ हैबिट इज एडिक्शन, एडिक्शन मीन आदत, ठीक है। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। अब ये आदत अगर हम अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे
ये हमारे स्कूल और हमारे घरों को साफ रखेगा। हेल्प अस मीन साफ रखने में मदद करेगा। यानी अगर हम इस आदत को अपनाएंगे कि हम अपने, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्लासरूम को ही इसी तरह साफ रखें, हम अपने घरों को भी साफ इसी तरीके से रख सकते हैं कि हम झाड़न के जरिए उसकी डस्टिंग करते हैं अपने कमरों की। इसी तरह हम जो वाटर बकेट है उसके जरिए ये उसमें से जो कपड़ा वगैरह उसमें गीला करके फर्श को साफ किया जाता है इन तरीकों से। इसी तरह ब्रश वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, एक मॉप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हैं यूज करने से आपका सारा कमरा जो है, आपका होम भी साफ रहेगा। इसी तरह हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्लास भी साफ रखना चाहिए। ठीक है, और क्लास में ये तकरीबन तमाम काम तो मैडमिन खालाएं तो करती हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप अपने क्लास का खुद भी ख्याल सकते हैं, क्योंकि आप जितना भी रबिश आपके साथ आप पेंसिल शॉप करते हैं या कोई आपके साथ पेज वगैरह हो, एक्स्ट्रा पेज हो, आप उसको थ्रो करना चाहते तो आप डस्टबिन में इन चीज़ों को थ्रो करके, यानी रबिश को थ्रो करके आप अपने क्लास को साफ रख सकते हैं। ठीक है, अपने क्लास को साफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बाय थ्रोविंग रबिश, आप जितना भी रबिश आपके साथ हैं वो अपने पाँव में अपने साथ ना गिराएं या अपने बैग्स के साथ ना गिराएं, वो आप अपने क्लास के जो कॉर्नर में जो डस्टबिन पड़ा होता है उसमें आप रबिश को थ्रो करके अपने क्लास को साफ रख सकते हैं। In this way, we will always, in this way, we will always be healthy and happy. इस तरीके से हम सेहतमंद भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। Stay happy and follow rules. अब stay happy मीन खुश रहिए और follow rules, rules को फॉलो करती जाए जो रूल्स हमने बताई है। अब इसमें से जितनी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो उनकी मैं आपको उर्दू मीनिंग बताती जाऊं। The very first one is in the first paragraph is favorite. Favorite mean पसंदीदा। The second one is reason. Reason mean वजह। The third one is speech. Speech mean तकरीर। The fourth one is activities. Activities mean सरगर्मियाँ। The fifth one is speak. Speak mean बोलना। In the second paragraph, the first word is difficult word is fun mean maza, that is enjoyment. Learn means सीखना. Rules mean usul. Follow mean पैरवी करना या अमल करना. And the fifth one is listen mean सुनना. So students, hope you have learned too much from this lesson. In this lesson, we have read all about the um, we have learned all about my classroom, the first paragraph, the second paragraph, and the third paragraph. The third paragraph also contains some meanings. Keep mean rakna, mop mean jharan, soap mean sabun, habit mean adat, and the last word is floor mean first. Students, note down all these difficult words meaning with you so that you can learn all these by heart. And also you can take a screenshot from this video for your convenience. So you can write all these. Mop, mop is a difficult word here in the third paragraph. Mop mean अगर आपने देखा होता है कि उसके साथ वो वाला झाड़न भी, ये मॉप झाड़न होता है या झाड़ू भी आप कह सकते हैं। झाड़न और झाड़ू वो चीजें होती है जिसके साथ एक हैंडल होता है और उससे फ्लोर को, फर्श को साफ किया जाता है। आप अक्सर खालाओं के साथ देखते हैं कि वो बार बार जो सफाई करते हैं फर्श की, तो उसके साथ एक हैंडल टाइप होता है। ठीक है, तो उससे सफाई की जाती है। मॉप इज द डिफिकल्ट वर्ड। अनदर क्वेश्चन यू कैन आस्क एट द लास्ट। लास्ट में आपको 1-2 मिनट्स दिए जा रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस यूनिट के मुतालिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है और आपको, आपने ये सब गौर से सुन लिया तो आप ये रफ कॉपीज में अपने डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग नोट करें। हैव यू एनी क्वेश्चन?